ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे हम लोग, राइट? वी वर स्टडिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, so in this chapter the next topic that we would be studying is human respiratory system. Okay, we have studied about the types of respirations, ठीक, and the mechanism of breathing. Okay, now the human respiratory system comprises the trachea, which is also known as the windpipe. This is the windpipe. Okay, so this is the windpipe, right? Then there are lungs. The lungs are situated in thoracic cavity, right? Then there is a system of tubes. The trachea divides into two, right? These two tubes are known as bronchus, plural is bronchi, and then each one of the bronchus divides like this. Okay, right? Now this opening of the trachea is known as, this is, इसको क्या बोलेंगे हम? This is the glottis. This is GLOTTIS, जिसके ऊपर एक lid like structure हम लोगों ने पढ़ा था. A lid like structure is present which is known as the epiglottis. Okay, and these structures, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये इसके आसपास हैं. ये इधर से आगे की तरफ ऐसे, फिर ये पीछे की तरफ, ये यहाँ से छुप जाएगा, पीछे को छुप जाएगा, ठीक है, और फिर ये इसके ऊपर की तरफ ये ऐसे, ठीक है. ये क्या है? दीज आर कार्टिलेजेस. ये रीजन क्या है? इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कंप्लीट रीजन इज द लैरिंग्स, LARYNX, larynx, the voice box. ठीक है, let us move ahead. Now the lungs present in the thoracic cavity are covered by pleural membranes. lungs के ऊपर membranes होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? the pleural membranes. इन दोनों membranes के बीच में एक space है, that is the pleural space. It has a fluid in it. इसमें एक fluid होता है, बहुत कम. This is around 2 to 3 ml. इतना सही होता है बस, ठीक है, जिससे ये दोनों membranes एक दूसरे से चिपक नहीं जाती, right? This fluid prevents the sticking of both of these membranes together, right? Now, as you can see, there are ribs visible in this diagram. First rib, second, third, fourth, fifth, and so on, right? Which is forming the rib cage. This is the rib cage. Inside the rib cage there are lungs. Okay, the lungs are covered by the pleural membrane. There are two pleural membranes. Between the space between the two pleural membranes is the pleural space. There is a pleural fluid amount 2 to 3 ml, right? Okay, below the lungs is a muscular diaphragm. This is your diaphragm, ठीक है, इस तरह से. ओके, ठीक है. अब जरा ट्यूब्स की बात कर लेते हैं. Now this tube system begins with the trachea. The trachea divides into bronchus. The trachea is the windpipe. It divides into bronchus. Then the bronchus keeps on dividing and so on. Okay, इसका थोड़ा सा और डिटेल अगर हम देखें तो ये इस तरह से है. देखिए, the first time it divides, it forms the primary bronchus. अब ये देखिए, ये एक बार जब ये बन गया, ये क्या है?
अब ये ध्यान रखना, ये प्राइमरी ब्रोंकस वगैरह जो है ये आपको डायग्राम में आइडेंटिफाई करने के लिए या डायग्राम बनाने के लिए भी दिए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस देन फॉलोड बाय, अब ये फर्स्ट टाइम ब्रांचिंग होगी, ये फर्स्ट टाइम ब्रांचिंग हुई तो ये क्या बना, प्राइमरी ब्रोंकस। फिर ये सेकेंड टाइम ब्रांचिंग हुई, ये इधर ब्रांच होकर गया, तो ब्रांच करने के बाद जो आगे एक्सटेंड हो रहा है ये क्या है, दिस इज द सेकेंडरी ब्रोंकस। और इसी तरह से एट द थर्ड टाइम व्हेन इट इज गोइंग टू डिवाइड, द स्ट्रक्चर विच इज नाउ बीइंग फॉर्म्ड इज द टर्शरी ब्रोंकस। ये 3 ब्रोंकस होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड द टर्शरी ब्रोंकस, ठीक है। और इसके आगे ब्रोंक्यूल्स शुरू हो जाते हैं। एनसीईआरटी में देयर इज़ अ लाइन, द ट्रेकिया, द प्राइमरी ब्रोंकस, द सेकेंडरी ब्रोंकस, द टर्शरी ब्रोंकस एंड इनिशियल ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब ये पीएमटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो बेसिकली दीज स्ट्रक्चर्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हो, यहीं पे अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म में ले लें, कार्टिलेजिनस रिंग्स, trachea, then primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, right, then initial ब्रोंक्यूल्स, इनमें होता है कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। अब इस डायग्राम पे दोबारा आ जाओ। अब इसमें क्या शो किया हुआ है, ट्रेकिया है, ठीक है, दिस ट्रेकिया, देन ब्रोंकस, फिर ये बीच में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया। अब ये देखते हैं, अब इसके बाद क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। सी टर्मिनल मीन्स द एंड, तो दिमाग में कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है दैट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल इज बेसिकली द एंड, द लास्ट ब्रोंक्यूल्स विच वुड नाउ हैव द एल्वेलाई। देखो जैसे जैसे ये ट्री है, सी दिस ट्री, it keeps on dividing and eventually what happens is it ends into sac like structure। ये बिल्कुल इस तरह से कि आपके हाथ में एक ट्यूब है, ठीक है, और वो ट्यूब काफ़ी ब्रांच्ड है और एंड में छोटे छोटे से बलून्स लगे हुए हैं, राइट। अब वो जो बिल्कुल लास्ट वाले हैं उनके लिए आपके दिमाग में आ सकता है, यू माइट थिंक दैट दीज आर द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, हाउ एवर दीज आर नॉट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का कंसेप्ट क्या है, just try to understand. If you look at this diagram critically, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक एल्वेलाई नहीं है। एल्वेलाई आर द एरियाज वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ने जाना है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर आना है, ठीक है। नाउ दिस हैपन्स इन द एल्वेलाई, ठीक। The gaseous exchange occurs in the alveoli. Up to terminal bronchioles, there is no alveoli. There is no alveolus. Okay. So terminal bronchioles mark the end of what? The area where no gaseous exchange occurs. अब इसको थोड़ा समझते हैं इस तरह से। Complete रेस्पिरेटरी पैसेज, ये यहाँ ट्रेकिया, ठीक है, ये डिवीज़न हो गया और इसके बाद ये इस तरह से आगे डिवाइड होता और एंड में क्या है आपके पास, यू हैव गॉट
द एयर सैक और द एल्वेलाई. ठीक है. नाउ एक जोन ऐसा है जिसमें एल्वेलाई नहीं है और एक ऐसा जोन है जिसमें एल्वेलाई बनने शुरू हो गए. ठीक है. यहाँ पे एल्वेलाई बनने शुरू हुए. ठीक है. तो अब इसके ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से इसके ऊपर वाला हिस्सा और इसके नीचे वाला हिस्सा, द पार्ट बिलो दिस जोन, दिस एरिया एंड अबव दिस एरिया कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर. राइट. यहाँ पर नो gaseous exchange. This space is known as the dead space. Right. यहाँ पर